ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ بلدیات کا نظام مفلوج ہو کر رہ چکا ہے۔ پنجاب بینک نے محکمہ بلدیات کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ مقامی حکومتوں کے مالیاتی امور بری طرح متاثر ہیں۔ روزمرہ اخراجات، تنخواہوں اور بلوں کی ادائیگیاں رک چکی ہیں۔ پنجاب حکومت کے پاس بلدیاتی نظام کی بحالی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ محکمہ بلدیات نے اعلیٰ حکام سے معاملے پر فوری مداخلت کی استدعا کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلدیات کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ اس وقت سینئر تجزیہ کار نوید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ نوید چودھری صاحب، بتائیے گا، محکمہ بلدیات کا سارا کام اس وقت ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کے اس فیصلے کو؟ آپ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اب خود حکومتی ادارے اور نیم حکومتی ادارے جو ہیں، خود مختار کارپوریشنیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ عدالت، خاص سول کوڈ ہی کیوں نہ ہو، اس کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا لازم ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری آپشن نہیں ہوتی۔ تو یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کلیئر کٹ ججمنٹ دی کہ بلدیاتی ادارے بحال کیے جاتے ہیں۔ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اتنے دن گزر گئے ہیں لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ الٹا یہ ہوا کہ جب بلدیاتی نمائندے چارج لینے کے لیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق، تو کبھی ان کو دروازے بند ملے، کبھی وہاں تالے لگے ملے، کبھی پورا عملہ غائب تھا۔ تو یہ ساری صورتحال بڑی افسوسناک تھی۔ تو درخواست گزاروں نے اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی الگ سے حکومت کے خلاف۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جب ان کے ڈیٹیل ججمنٹ آ چکی ہے اور ججمنٹ کی کاپیاں مختلف اداروں کو مل چکی ہیں، تو بینک آف پنجاب نے ایک بہت بڑی پیش رفت کی اور قانون پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر محکمہ بلدیات کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے۔ یہ 100% درست فیصلہ ہے اور قانونی طور پر بالکل ٹھیک اسٹیپ لیا انہوں نے۔ لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آ گئی کہ بلدیاتی ادارے پورے پنجاب میں بحال ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فنڈز کا استعمال جس دن یہ حکم جاری ہو گیا اس سے اگلے دن زیادہ سے زیادہ اس کا اطلاق ہو جانا چاہیے تھا۔ اب جو فنڈز کا استعمال ہے وہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کی ثوابدید پر ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق۔ تو محکمہ بلدیات جو ہے اس نے جو بھی کرنا ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے کرنا ہے۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ ابھی تک منتخب اداروں کو جو ہے وہ بحال ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے قانون نے اپنا راستہ بنانا ہے، تو قانون نے اپنا راستہ بنا لیا۔ اب عالم یہ ہے کہ بلدیات جو ظاہر ہے بہت اہم شعبہ ہے، اکاؤنٹس منجمد ہونے کے بعد ان کے پاس روزمرہ اخراجات کے پیسے نہیں ہیں، یوٹیلٹی بلز وہ پے نہیں کر سکتے، اور تنخواہوں کا معاملہ جو ہے وہ بھی بن گیا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ مفلوج ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں 100% کوتاہی، 100% غلطی حکومت کے وقت کی اپنی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات ہوئے جس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ الگ سے بھگتنا ہوگا، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی صورت میں بہت سنگین بھی ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کے لیے اور ان حکام کے لیے جو اس حکم پر عمل درآمد سے دانستاً گریزاں ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ جی نوید چودھری صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، آپ بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کی جانب سے اس کوتاہی کو جو کہ برتی جا رہی ہے، اور ایک عدالت نے اگر فیصلہ جاری کیا ہے اور اگر حکومت اب اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہی، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام سچویشن کو آپ؟ یہ بلیٹنٹ وائلیشن ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ جیسے ہائیسٹ ایپک کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا کہ فوری طور پر ان کو بحال کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کس پریٹیکسٹ پر، کس جواز پر ابھی تک حکومت نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ اس میں وفاقی حکومت ذمہ دار ہے، صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں، اور ساری ہی صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ کہیں بھی ان اداروں کی بحالی نہیں ہوئی ہے، نہ کے پی کے میں، نہ بلوچستان میں، نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سپریم کورٹ خود سے کیوں ایکشن انیشیٹ نہیں کر رہی، کیونکہ جو یہ فیصلہ جو پنجاب بینک کا آپ نے بتایا کہ انہوں نے فریز کر دیے اکاؤنٹس، یہ ایک اور حد تک ہے سپریم کورٹ کی۔ تو یہاں بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ جانی چاہیے ان کو۔ اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یونیلیٹرلی یہ سارے
अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दे, क्योंकि जब तक इदारे बहाल नहीं होंगे, जब तक इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर और उनके जो चीफ अकाउंटेंट्स हैं वो कहेंगे नहीं बैंक कैसे फ्रीज कर सकता है इसको, मेरे ख्याल से ये एक और तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये मामला जो है वो गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। हम सिर्फ यही तवक्को कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और जो हुकूमतें हैं सूबाई हैं चाहे वफाकी हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो इस मामले में मजीद ताखीर करके मुजरम ना बने, उनको फिलफौर इन इदारों को बहाल करना चाहिए। सूरत हाल ये है कि पंजाब में हम देखते हैं कि रोजाना तकरीबन वो तमाम बलदियाती मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो आते हैं और आगे ताले लगे हुए होते हैं गेटों को और उनको इजाजत नहीं दी जाती है अंदर जाने की। ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल लॉलेसनेस है, ये ऐसे लगता है ये रियासत जाना है जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ कोई कानून को देखने वाला नहीं है। नवीद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा मैं उसमें मजीद ऐड करना यही चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक्शन इनिशिएट करे और नॉट इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द एपेक कोर्ट। तो सलीम बुखारी साहब, ये क्या मुफादात हो सकते हैं इसमें हुकूमत के कि अगर एक फैसला आ चुका है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, क्या स्टेक है इस वक्त हुकूमत का, क्यों अमल नहीं किया जा रहा? बुनियादी वजह यह है कि कोई सूबाई हुकूमत अपने फाइनेंशियल इख्तियारात जो हैं वो मुंतखब नुमाइंदों को देने पर आमादा नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है और तमाम सूबों में यही सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर चूंकि खुद फैसले करता है कि कौन से तरक्याती फंड देने हैं, कौन से तरक्याती फंड नहीं देने हैं। इसलिए ये मेरे ख्याल से इस सूरत हाल को जिस कदर जल्दी यानी इम्प्रूव कर दिया जाए, जिस कदर जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उतना ही मेरा ख्याल है सबके हक में बेहतर होगा। अच्छा सलीम बुखारी साहब, हम एक बार फिर से नवीद चौधरी का रुख कर रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि जब हुकूमत के पास बल्दियाती निज़ाम की बहाली के अलावा और कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है तो फिर ये कोताही क्यों बरती जा रही है? कह रहे हैं कि सरीहन तौहीन अदालत की जा रही है, बल्कि मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा। ये तो अदालत उज़्मा से जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसको आइन की तशरीह का भी मुकम्मल हासिल है, आप अंदाजा करें कि उस फोरम पर मुहाज़रे की जा रही है। ये कंटेम्प्ट से आगे का मामला चला गया, क्योंकि अब कंटेम्प्ट की दरखास्तें भी कुछ फाइल हुई हैं और जैसा सलीम बुखारी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर खुद एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि जो मुआशरे के अंदर बेचैनी इस हवाले से पाई जा रही है वो बहुत बढ़ गई है। जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को मानने से इनकार कर देंगे और एक ऐसी फिजा बनाएंगे जिसमें सबको ये दिखाई दे कि कोई अपने आप को कानून और आइन से बालातर समझते हुए अदालतों के अहकामात मानने से इनकार कर रहा है, बल्कि उनका मजाक उड़ा रहा है, उनका मुंह चढ़ा रहा है, तो उसके बाद ये मुमकिन नहीं रहता कि आप स्मूथ तरीके के साथ सारे स्टेट फंक्शन को रन कर सकें। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अज खुद एक्शन ले और इसमें कोई भाम नहीं है अब कि ये मामला हुकूमत की हमाकतों के सबब, पहले ही आप देखें किस किस्म की गवर्नेंस चल रही है पूरे मुल्क में और पंजाब में, और उसके बाद आप देखें कि बल्दियात जैसा अहम महकमा मफलूज हो गया और उसमें सारे का सारा कसूर जो है वो हुकूमत पंजाब और मुतलका हुकाम का है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया और अभी हीले बहाने से वक्त गुजारते जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ ही रहिएगा नवीद चौधरी साहब। दुरन नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरन नायाब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है गालिबन। एक बार फिर से रुख करते हैं सलीम बुखारी साहब का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बताइएगा कि इस वक्त बल्दियाती इदारे के पास अब क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर उसके बाद ऑप्शन की तो बात ही नहीं है, इसकी सिर्फ फैसले की इम्प्लीमेंटेशन इशू है। और जिस ढिठाई के साथ इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ओपनली एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। और मैं तो हैरान हूँ कि पंजाब बैंक ने फैसला ये कैसे किया कि अकाउंट को फ्रीज करने का। कोई अथॉरिटी नहीं है सिवाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जो इस तरह की कार्रवाई करने का बैंक को कह सकते हैं। क्या वफाकी हुकूमत ने कहा है, क्या पंजाब की हुकूमत ने कहा है? तो ये एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये हमारी पीटीआई की हुकूमत जो पंजाब की है या मरकज की है, उन्हें ये सिंपल बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो फैसला दिया है उसको इम्प्लीमेंट करें आप।
क्योंकि इसका एक ही हल अब रह जाता है, बाकी के सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी प्रेस्टीज की खातिर, अपनी रिट की खातिर पंजाब हुकूमत को या जहाँ जहाँ भी बलदियाती इदारे हैं वहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए वाज़े ऑर्डर जारी करे, और उसके पीछे इतनी फोर्स होनी चाहिए कि ये सूबाई हुकूमतें जो है मजबूर हो जाए उस पर अमल दरामद के लिए। अच्छा, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद मेयर लाहौर ने हमें ज्वाइन किया है। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब आप के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या अदालत का दरवाज़ा फिर से खटखटाया जाएगा अब? रहीम, देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है डिटेल्ड ऑर्डर वो बहुत क्लियर है। हुकूमत पंजाब पहले बहाना लगा रही थी कि शॉर्ट ऑर्डर्स हैं, फिर इन्होंने कहा जी डिटेल्ड ऑर्डर्स आए, अब डिटेल्ड ऑर्डर आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि जी उसमें ये नहीं लिखा कि जी ये 2013 के मुताबिक इनको बहाल किया गया है। आप शॉर्ट ऑर्डर में पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है शैल बी रिस्टोर्ड बिफोर द प्रमलगेशन ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ 2019 लोकल गवर्नमेंट एक्ट पंजाब, यानी कि जब इन्होंने 2019 का आर्टिकल सेक्शन 3 जो है उसको परमलगेट किया है, चूंकि कोर्ट ने कहा है कि इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए इनको बहाल किया जाता है एज पर लॉ। यानी कि जब वो लॉ का मुराद यह है कि 2013, और जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो बड़ा क्लियर है। अब हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब हमने इनके बदनीयती देखी तो हम चले गए फिर पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में। हर एक्सीलेंसी जस्टिस आयशा जो है उनके पास हमारा केस लगा हुआ है। इनका जो सरकारी वकील है कल उनसे डांट खाकर आया है 12 पिटीशनों के ऊपर। उसने कहा जी मैं एक जवाब लेकर आया हूँ, तो उन्होंने कहा 12 पिटीशनों का जवाब लाएं। दूसरी पिटीशन हमारी थी इम्प्लीमेंटेशन। आधे से ज्यादा सूबे में हमने वर्क्स के ऊपर स्टे ऑर्डर्स ले लिया है, बिकॉज आर्टिकल 190 वेरी क्लियरली सेज कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है मातहत अदालतें उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की पाबंद हैं, और सरकारी मुलाजमीन भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के पाबंद हैं। ये नहीं कर रहे तो अगर हमें वो स्टे मिल रहे हैं तो वो उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है हमें स्टे मिल रहे हैं, क्योंकि अदालतें जो हैं इस वक्त कानून को हाथ में लेकर खड़ी हैं। इनको अकल के अंधों को ये समझ नहीं लग रही है, और ये इतना बड़ा आईनी बहरान होने जा रहा है पंजाब में, और बल्कि मैं कहूँगा ये पाकिस्तान तक स्प्रेड हो जाएगा कि ये कानून की हुक्मरानी को नहीं मान रही है पीटीआई की हुकूमत, और खास तौर पर पंजाब की हुकूमत। हमें अदालतें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर स्टेज देती जा रही हैं। पंजाब बैंक को हमारे एक चेयरमैन ने, पीरावाला है मुल्तान के साथ, वहाँ के चेयरमैन ने उनको लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पेमेंट्स नहीं कर सकते। उन्होंने वही लेटर जो है वो उसको लिख दिया अपने बैंक को। उधर भी कंफ्यूजन हो गई है कि हाँ हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। आज राजा बशारत साहब ने असेंबली में ये फरमाया कि जी जिला काउंसिलें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो हम जिला काउंसिलें किधर से ले आए? तो भाई आपके 2019 के कानून के मुताबिक आप कहते हैं कि हमने तहसील लेवल पर ले आए हैं, मुझे बताओ। तो भाई आप बना ही नहीं सकते, बिकॉज आर्टिकल 140A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसके इख्तियारात इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है लोकल गवर्नमेंट्स के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी आर्टिकल के तहत हमें बहाल किया गया है कि हम इसके मुताबिक चलाएं अपने बलदियाती निज़ाम को। तो जब आपके पास इलेक्टेड लोग ही नहीं हैं और ना आपकी आगे नीयत है इलेक्शन कराने की, ना आपका कानून है, ये मैं वाज़े तौर पर मिनिस्टर पंजाब को ये कहता हूँ, ला के मिनिस्टर को, कि आए मेरे साथ मुनाजरा करें, जो इस किताब को ये कहते हैं कि हमने ये कानून बनाया है, और वो मुझे दिखा दें। और दूसरा, ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट तो बन ही इलेक्टेड लोगों के जरिए होती है, और इन्होंने जिला काउंसिलें बनानी कैसे है जी? आप एक ऑर्डर कर दें कि जो है 4 मई 2021 से पहले, जिस तरीके से 25 मार्च 2021 से पहले जिस तरह लोकल गवर्नमेंट्स थी, 4 मई 2019 से पहले उसी तरह रिस्टोर की जाती है। वहाँ बिल्डिंगें मौजूद है, अमला मौजूद है, उनको काम का पता है,
वो उधर से उठेंगे अपनी बिल्कुल, वो से, काम का पता उसी है। बिल्डिंग में अच्छा जाकर मुबश्शिर बैठ साहब, हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से? जी जी, मैं कर्नल साहब से ये पूछना चाहूँगा कि बैंक ऑफ पंजाब ने तो यकीनी तौर पर सही स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद करना तमाम सरकारी इदारों का, मतहत अदालतों का, हुकाम का उन पर लाजिम है, मतलब ये इसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो कर्नल साहब, आपने बाकी इदारों को भी मुतल्ला कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है वो यकीनन आपने कौंसल के थ्रू भी पहुंचा रहे हैं मुख्तलिफ इदारों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर जनाब, आप मेरी अर्ज सुन लीजिए। हम गए कोर्ट्स में, हमने पहले उनको लेटर लिखे, मेरे पास बहुत सारे लेटर्स ऐसे मौजूद हैं कि आप ये काम ना करें। मैंने सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को लेटर्स लिखे हैं। उसके बाद मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं कि मैं सिविल कोर्ट में गया, इन्होंने 2-3 टेंडर्स किए लाहौर में 25 मार्च के बाद, एडमिनिस्ट्रेटर ने और CCO MCL ने किए। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने मनो अन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें बेस करते हुए हमें स्टे ऑर्डर दे दिया। और आप यकीन कीजिए कि ये उन वर्क्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आईनी बहरान होने जा रहा है और इन्होंने पैदा कर दिया है और ये दुनिया में अपने मुल्क को तमाशा बनाए हैं। हमने स्टे लिए हुए हैं पूरे पंजाब में। मैं अगर कहते हैं तो कल आप मुझे एक दिन का टाइम दे दें, कल शाम को मैं सारे स्टेज की कॉपियां लेकर आ जाऊंगा और ये सारी जगहों पर ये काम करवा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। तो क्या इस मुल्क में कानून की बालादस्ती है या PTI हुकूमत की बालादस्ती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? और मैं आपको उसकी बेलातादाद जो है मिसालें दे देता हूं। जैसे मैंने इनसे पहले कहा, ये कहते हैं जी हमने 2019 के तहत जो है वो सारे कवानीन लागू कर दिए, हमने लोकल गवर्नमेंट जो है बना दिए। वो अकल के अंधो, मेरा पाकिस्तान मेरा वतन है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ मरना है। आप कुछ खुदा का खौफ खाएं कि जो कानून है वो कहता है कि इलेक्टेड लोग जो हैं वो सरबराह होंगे लोकल गवर्नमेंट के। वो आपने सरकारी मुलाजमीन को, जिसको हम अपनी तनख्वाह अपने टैक्सों से देते हैं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को आपने बना दिया हुआ है, उनका कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने उनको उनका सरबराह बना दिया। जो यूसीओ में क्लर्क सेक्रेटरी का काम करते थे, वहाँ लोकल इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं है, वहाँ आपने उनको सरबराह बना दिया। कानून की बालादस्ती नहीं है, यहाँ पर हुकूमत की चलती है। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, लॉर्ड मेयर लाहौर हमारे साथ थे। साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी और सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी भी हमें अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे।